Yes, folks. Good afternoon. Now I can see your chat simultaneously, so so that I can see what is happening. All right. So, did you guys go through the previous two chapters, chapter number 6 and 7? मैंने आज सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दिया था. All of you have gone through that. कोई है जिसने नहीं you have not gone through 6 7? Come on guys. I think किसी ने भी नहीं करा शायद से. Is there anyone who has gone through it? Nancy. Chalo, please. Okay, good. Then people have gone through this. So we are going to do what we are going to do is we are going to revise, go through quickly what we have done. चैप्टर नंबर 6 and 7 मैंने ऑलमोस्ट मेरा 7th 8th एक्चुअली पूरा मार्क था ठीक से. वाइल एडिटिंग दे मुझे उसके किसी और के जिससे पहले वो थे वो डिलीट करने थे, वो मैं करना भूल गया था. नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. Yes. So if you see, I've already marked this into my color coding, and you already know my color coding मेरी किस तरीके से होती है. So I've done that work, and all of this work is now done. Now you can easily go through this. I will just send it to you by the end of the day. I think या कल सुबह तक once I'm complete with this, I can send it to you, and then you can read it. You have my version as well. You have your own version. जैसा जिसको ठीक लगता है पढ़ते हुए, you can do that. And chapter number 8 almost आज ख़त्म हो जाएगा. Whatever is left in chapter number 8 we'll do it tomorrow. But more or less of Phillips का वो आज हम ख़त्म कर लेंगे. And then after completing chapter number 8 tomorrow, what we will do is we will go into this thing, Friedman का theory of monetarists as well. And then उसके बाद once we have done that Friedman theory, then उसके बाद if you want then I can also अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. समीक्षा भी मैं सारा रिवीजन कराऊंगा. पता तो है समीक्षा, मैं बिना रिवीजन के काम चलता ही नहीं. मुझे लगता है मैंने ही नहीं पढ़ा है. इफ़ आई डोंट रिवाइज मुझे लगता है कि मेरा ही वो ठीक नहीं चल रहा. सो डोंट वरी. मैं अभी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी वो सब कुछ वापस आई विल रहा हूँ. हाफ एन आवर हमें पता ही है कैसे होती है. तभी तो मेरा कोमल वॉज वेरी सरप्राइज कि आफ्टर टेकिंग एन एक्स्ट्रा सेशन ऑन सैटरडे आई एम स्टिल लेट विद 3 क्लासेस. तो मैंने कहा कि मेरा वो जो गंदा आदत है कि रिविजन का, बट I don't know. I'm very comfortable with that. That is how I study. Does anyone follow this method? By the way, कोई फॉलो करता है इस मेथड को? जो मैं मेथड आपको बताता हूँ कि पढ़ने से पहले पूरा को वापस देखना है एक बार. कोई और फॉलो नहीं करता समीक्षा के अलावा? अरे अनुष्का आज आप भी आए हो. गुड. Now so the thing is that this is how you should study, and I'm a huge proponent of this kind of work ethic while studying. So we'll talk about this, and for tomorrow's agenda, after completing chapter number 8 we'll go to Friedman, and then once we are done with Friedman, to shift our schedules for at least a few days in a week. किस चीज़ का शेड्यूल अनुष्का? Sir, I was talking about college. अच्छा नहीं क्या शिफ्ट और शेड्यूल मुझे समझ नहीं आया. कॉलेज क्या? College timetable. So it was the classes were supposed to be till 3:30, but I requested them for few days that they could end it at 1, so I can reach back at home by 2. अच्छा तो you wanted them at 2 o'clock ना? 2 o'clock ही तो होती है मैम की क्लास. No, sir, I'm talking about college schedule. I was missing these live sessions, that's why. अच्छा ओके ठीक है. So the idea is कि tomorrow we'll do Friedman, and then on Wednesday
आई विल डू अ ओवरव्यू ऑफ ADAS, जो जितना हमारा रह गया एक बार मैं आपको उससे फ्रॉयन से और DFS से दिखा दूंगा. एंड एक पोर्शन है होगा हमारा ऑफ Phillips curve का पोर्शन विच इज़ फ्रॉम DFS. नाउ दिस पोर्शन इज बेसिकली, एंड यू कैन नोट इट डाउन, दिस पोर्शन जो Phillips curve का DFS से वो है ओकन्स लॉ और सैक्रिफाइस रेशो. नाउ दिस इज नॉट गिवन एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर DFS. तो मैंने कहा था ना हम 3 बुक्स साइमल्टेनियसली देखेंगे, और वंस वी कंप्लीट दीज 3 बुक्स यू गोइंग टू बी इनविंसिबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब उसके बाद तो तुम जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं है. यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो a very comprehensive view of that. तो मैम will take up when she will take your session on Thursday. हमने कैसे प्लान किया है कि थर्सडे को शी विल डू फर्स्ट बिट ऑफ ओकन्स लॉ, फिलिप्स कर्व. तो आपने मेरे से पूरा फिलिप्स कर्व पढ़ लिया, मेरे से पूरा फ्रीडमैन पढ़ लिया, वो सब कुछ पढ़ लिया. नाउ मैम विल गिव यू अ एंडिंग टच टू दैट थ्रू दैट DFS चैप्टर, एंड देन शी विल स्टार्ट अप विद न्यू क्लासिकल्स, जहाँ से मैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड करूँगा. शी विल स्टार्ट विद रैशनल एक्सपेक्टेशन, build into new classical economics, and then finally end at new Keynesian economics. Is the idea clear? सबको मैक्रो का फ्लो समझ में आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट का फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि ये इट शुड नॉट बी कि तुम इधर उधर हेडलेस बॉडी इधर उधर घूम रही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. इट्स अ स्टोरी, योर स्टोरी शुड बी कंप्लीट. और उसके बाद आई विल अगेन टेक अप योर चार्ज. आई विल डू विद 1 week or maybe 7 to 10 classes. I will then do money and banking with you. और money and banking बहुत quickly लेके जाऊँगा. Why? Because a lot of this has been covered. I have a lot of recordings that you can obviously watch. These are all there, but still I will run through them very quickly. And then we will go on to public finance, and move on to then growth and development, and then finally इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एंड फाइनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो हम एम कर रहे हैं कि हम नवंबर मिड तक वी शुड रीच द लेवल ऑफ कंप्लीटिंग पेपर नंबर 1. एंड देन अगर नवंबर अर्ली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नवंबर मिड इज़ रियलिस्टिक. एंड देन 45 days 50 days वी विल गोइंग टू गिव टू इंडियन इकोनॉमी. इज़ द आइडिया क्लियर? और साथ साथ पेपर देते जाना है, ठीक है? पेपर तो मतलब सोच के भी नहीं वो करना है. तो एंड अभी मैं एक रीटेस्ट लेने वाला हूँ माइक्रो वालों का, जिनका मिस हुआ है. तो ध्यान रखना कि यू हैव टू पीपल हु हैव मिस्ड द एग्ज़ाम, यू हैव टू गिव इट. देयर आर 3-4 people दैट हैव मिस्ड द एग्ज़ाम, ठीक है? एंड विदाउट रीज़न मिसिंग होगा तो आई विल रिमूव यू. मैंने आज एक किसी को रिमूव भी किया है, ठीक है? कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास कि पेपर क्यों नहीं दे रहे हो. सो then you are out. So make sure you are up with it with respect to क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. और पेपर की डेट बार बार चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है. तो मेक श्योर कि यू आर स्टडिंग इट साइमल्टेनियसली. नाउ लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ, हमने अभी क्या क्या करा था. मैं क्विकली आई विल गो थ्रू दैट, ठीक है? एंड जस्ट अ सेकंड, माय सिस्टम सीम्स टू हैव एंड नहीं अनुष्का, मैं फिर से नहीं ले सकता. बहुत मुश्किल से पेपर चेक होते हैं. यू हैव नो आइडिया पेपर चेक करने का कितना बड़ा टास्क है, ठीक है? अभी मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा कि अभी इफ़ यू अपलोड योर आंसर शीट्स तो मुझे वो भी देखनी है. तो इट्स रियली टफ. You can see the paper and try to attempt it. That is something that you can do, but checking I cannot promise right now. मैम से पूछ सकते हो, अगर मैम इज़ विलिंग टू डू इट, आई एम मोर देन हैप्पी. एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊँगा. सो लेट्स हमने जो बात करनी शुरू करी थी, पूरा आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिकैप इन 15 minutes एंड देन वी आर गोइंग टू रन विद इट. हमने बात करनी शुरू करी थी फ्रॉम लेबर मार्केट, वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. I
I will let you know Vedika retest. Probably this coming Sunday we will have the retest. I think 4 or 5 of you are there जिनके valid reasons थे. ठीक है, तो we'll do that. Let me just start with this. देखो, हमने बात करी थी लेबर मार्केट की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, एम्प्लॉयमेंट रेट की, पॉपुलेशन रेशो की. वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट. Then उसके बाद we had talked about, I told you this is not really important, but if you want to read it you can read it. I've marked it. हमने वेज डिटर्मिनेशन की बात करी थी कि people get wage which is higher than their expected wage, which is or your reservation wage. These are called efficiency wages. There's something called bargaining. Bargaining also depends between the power of the employee and the employer. Efficiency wages I explained you. एंड देन हमने फर्स्ट रिलेशनशिप सेट किया था. W इज इक्वल टू, हम इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे, प्राइस इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? एनीवन रिमेंबर्स? हम फर्स्ट चैप्टर में, 6th चैप्टर में क्या लेके चल रहे हैं? व्हाट इज द मेजर असम्पशन? दैट प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस. सो वी आर गोइंग टू टेक दैट असम्पशन. बट अभी हमने कहा कि वेज सेटर्स जो हैं, वेज सेटर्स विल सेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अगर आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं आता तो आप चैप्टर नंबर 8 आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला. आज आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था और क्यों मैंने तीनों चैप्टर एक साथ कराए हैं. ठीक है ना. वेज, अब हम वेज प्राइसेस, इस देखो इस ड्यूरेशन में हम क्या बात कर रहे थे? हम बेसिकली बात कर रहे थे ADS का मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इनिशियली वी हैड केप्ट, जब हमने ISLM के बारे में बात करी तो हमने जब प्योर कीनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी तो वी सेड दैट जितना भी आप डिमांड करोगे उतना आपका सप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन अ डिप्रेशन इकोनॉमी. Now that is not always going to be there and we need to challenge that assumption. So initially we will put P is equal to PE, but later on we will change this. Now हमने कहा कि वेज सेटर्स कैसे वेज सेट करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइसेस पे सेट करते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि यू आर गोइंग टू आस्क फॉर अ वेज फॉर द नेक्स्ट 3 years, सो यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 3 years में प्राइसेस क्या होंगे, और उसके बेसिस के ऊपर यू विल फॉर्म एन एक्सपेक्टेशन. एंड देन यू विल ऑल्सो से अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्केट में कितना है एंड गवर्नमेंट फ्री में कितनी चीज़ें देती है, जो कैच ऑल फैक्टर है. सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस यू सेट अप योर थिंग्स एंड अदर फैक्टर्स, ये हमने सारे डिस्कस करे. फिर हमने बात की प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसमें हमने बात करा कि आउटपुट विल बी योर जो जितना भी आपका कंट्री का आउटपुट है, विच विल बी अ फंक्शन ऑफ योर लेबर. एंड अभी हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिया है, जिसमें हमने A इज इक्वल टू 1 ले लिया है एंड Y इज इक्वल टू N इज बेसिकली द आउटकम ऑफ दिस. एंड देन हमने कहा कि प्राइस सेटिंग एक बिहेवियर होगा. नाउ प्राइस सेटिंग बिहेवियर हमने क्या बोला था, किसी को याद है? किस बेसिस पे आ रहा था ये? वाई वॉज, हमने कहा था मार्जिनल कॉस्ट तो वेज है, तो वाई नॉट कीप प्राइस इज इक्वल टू MC? वाई दिस 1 + M? एनीवन रिमेंबर्स? इट्स बेसिकली द मार्कअप, एंड मार्कअप इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? कम ऑन गाइस, मार्कअप इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? इम्परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली पावर. कशिश की मोनोपोली पावर कितनी है, क्या कहते हैं, इन दी इंटायर इकोनॉमी, उस फर्म की मोनोपोली पावर कितनी है, वो हमें समझाता है. देन now the fact is कि we have this as our price is equal to W 1 + M into W, and this is basically the markup. And then हमने कहा natural rate of unemployment. Now हमने natural, remember this देखिए, हमने natural rate of unemployment के लिए सबसे बड़ी जो assumption ली है, जो सबसे बड़ी assumption ली है, वो P इज इक्वल टू PE ली है. जब P इज इक्वल टू PE है और हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, देन वी गॉट दैट F जो UN है और Z जो है, दैट इज इक्वल टू W/P. वी हैड डन दिस, तभी हमारे पास UN आया था और हमारे पास एक वेज सेटिंग रिलेशनशिप आया, एक वेज सेटिंग रिलेशनशिप, एक प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप, जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका W/P है और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो वो है जो आपका नेचुरल, दिस इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ तक सबको याद है? ग्रेट. देन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनको सेट कर दिया, हमें नेचुरल रेट पता चल गया. एंड वी ऑल्सो गॉट दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि हमारा इक्वेशन वो था, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया UFNM इज इक्वल टू 1/1 + M. हमारे पास ये भी आ गई, क्योंकि
हमारे पास दिस इज द अदर साइड फ्रॉम दिस साइड वाज कमिंग फ्रॉम द प्रॉफिट साइड. तो दिस इज द नेचुरल रेट. और हमने ये बात कर लिया कि अगर z चेंज होगा तो क्या होगा और m चेंज होगा तो क्या होगा. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर m बढ़ता था तो क्या होता था. m बढ़ता था तो नंदना व्हाट यूज्ड टू हैपन. अनम्यूट योरसेल्फ. Real wage decreases Why real wage decreases? because monopoly power is increasing. Absolutely, monopoly power is increasing. They can afford you afford to pay you less. Then Anushka, what was the reason? अरे अनुष्का बोलते के साथ ही गायब. Okay. Vedika, are you following macro classes? Hello. Vedika, I can't hear you. अनुष्का, are you studying these days? चल रहा है साथ साथ क्लासेस की लैग चल रहा है. So macro recently अभी backlog चल रहा है. बैकलॉग चल रहा है, चलो ठीक है. यस वेदिका. यू नॉट ऑडिबल. कोई बात नहीं. ओके. संस्कृति, अगर z बढ़ता है तो क्या होता है. संस्कृति, wages increase होता है. क्यों होते हैं. सर क्योंकि फिर प्राइस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है मार्केट में. नहीं नहीं, मुझे ठीक से बताओ, ठीक से बताओ, ऐसे नहीं. समीक्षा, if z increases then what happens, can you explain it to me. You can give me an example as well. Kriti. Sir, their reservation wages will increase because by giving unemployment benefits, the natural rate of unemployment will increase. So they would be less willing to work at that wage rate. बिल्कुल परफेक्ट. तो ये these are the reasons कि हमने ये सारे चेंजेस देखे. हमने ये वाला चेंज देखा, हमने ये वाला चेंज देखा, और हमने फिर उसके बाद हम आउटपुट से हम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट पे चले गए. एंड वी रोट दिस एज कि जब ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, और जब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट भी होगा. एंड वी कैन राइट दिस एंटायर इक्वेशन एज 1 माइनस w. समीक्षा, माइक इज ऑन. 1 अपॉन y माइनस yn अपॉन l z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस m. यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ. यस, समीक्षा ठीक बोल रहे थे. ठीक है, चलो. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे है जो हमने पिछली क्लास के अंदर पूरा डिस्कशन किया. ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा. सो यू नीड टू रीड अ कपल ऑफ थिंग्स. मतलब क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी है जितना हमने करा है, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई वांट यू टू रीड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल एसोसिएशन. ठीक है, तो वो हम पढ़ लेंगे. एंड बाय द वे, जब हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको वापस पढ़ने हैं अच्छे से. एंड यू हैव टू, व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन इंडियन इकोनॉमी, कीप इन माइंड फिलिप्स कर्व और ये वाली पूरी इक्वेशंस और ये वाली सारी चीज़ें, क्योंकि ये आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर मैक्रो यूज़ करोगे और मैक्रो के अंदर इंडियन इकोनॉमी का डेटा यूज़ करोगे. ठीक है, सो मैं आपको जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊँगा तो मैं आपको CPHS का डेटा पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्या कहते हैं PLFS का डेटा पढ़ाऊँगा. तो ये सारे के सारे डेटा सेट्स को आपको कोलैबोरेट करना है और आंसर्स इंडिया के हिसाब से थोड़े से एग्जांपल्स लिखने हैं वहाँ पर. ठीक है, देन अब एग्रीगेट सप्लाई. नाउ हमने एग्रीगेट सप्लाई की बात करी क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई देखना चाहते हैं, क्योंकि कीन्स जो है वो तो बेसिकली वो कह देता है कि यार जितना आप डिमांड करोगे उतना आपको सप्लाई मिल जाएगा. कि किसी को याद है कीन्स का सप्लाई कर्व कैसा होता था. हाउ वाज इट. 45 degree line. 45 degree line. Diya, why was it a 45 degree line? Diya? Because he assumes. Assumes क्या. अरे assumption तो बहुत ही वो चीज़ है. खैर,
Okay, so basically he's in the basically context when he's giving the theory. Remember he's mass unemployment के टाइम पे दे रखा है कि जितना भी आपका डिमांड होगा, जितना भी आप डिमांड करोगे उतना सप्लाई हो जाएगा सेम प्राइसेस पे, आपकी मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगी. बट नाउ वी आर गोइंग टू चेंज ऑल ऑफ दैट. हमने अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली हमने एक साथ पुट करी. यहाँ पर जो W था इस W की जगह हमने ये पुट कर दिया, and we get price is equal to PE 1 plus M F UE. This is what we got, and because we know UE का हमें वो पता है तो we could write YL यहाँ पर, और हमारे पास YL और P के बीच में रिलेशनशिप आ गया. We are assuming that this is constant, we are assuming that this is also given, we are assuming कि this is also given. अब हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया P और Y के बीच में, जहाँ पर एक मेजर जो स्टोकेस्टिक फैक्टर है वो है PE. PE पे डिपेंड करेगा कि आपका AS कर्व कहाँ पर जा रहा है. And this AS curve will always pass through a point where if P is equal to PE, then what is U equal to? Oh sorry, यहाँ पर तो वो है ना एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर तो प्राइस और आउटपुट. Then what is Y equal to? Come on guys. If I'm drawing my AS curve, when P is equal to PE, what is, yes, perfect, Y is equal to YM. ठीक है, why? Because when P is equal to PE, we know that U will be equal to UN, and we know that N will be equal to NN, and we know that Y will be equal to YN. ये हमने पिछले चैप्टर में पूरा डिस्कशन कर लिया है. ठीक है, so now we've got this relationship, and we saw that how increase in ये बहुत important थी, how increase in expected prices leads to output increase. Now let me ask खुशी, प्राइस इंक्रीज, एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज की वजह से आउटपुट क्यों इंक्रीज हो जाता है? Yes, Kushi. Nancy, if you can unmute. नहीं, okay. बच्चे ही कम है. नंदना, is it because employment will be greater than natural rate of employment? नहीं, मुझे आउटपुट वो समझाओ ना कि अगर प्राइस, इफ आई एम सेइंग दैट इफ P given this thing, if the increase an increase in output leads to an increase in price level, मुझे ये समझाओ. Okay, see, this is what we did yesterday कि अगर आप आउटपुट इंक्रीज करोगे, ठीक है, if you are going to increase the output, you are going to increase the employment. If you are going to increase the employment, you are going to reduce the unemployment. That means unemployment rate will decrease, and a lower unemployment rate का हमारे पास wage setting relationship के साथ क्या था? Remember, wage setting was PE F U Z. तो इसीलिए वो बार बार आपको पीछे देखना है. अगर ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स ये आपका कम हो रहा है, तो ये आपकी वेजेस बढ़ रही हैं. इंक्रीज इन नॉमिनल वेज, बट इंक्रीज इन नॉमिनल वेज यू नो विल हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि बिकॉज यू नो P इज इक्वल टू 1 प्लस M W. समझ में आया? सबको याद आया? यस नो गाइस. ठीक है. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट given unemployment rate and increase in expected price level also leads to an increase in actual price level. यही तो बता रहा है यहाँ पर. ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है, ये पूरी इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर मेरा y इंक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, और मेरा बता रहा है कि अगर PE इंक्रीज होगा तो भी P इंक्रीज होगा. कैन नाउ समवन टेल मी, संस्कृति, कैन यू टेल मी कि PE इंक्रीज होने से P क्यों इंक्रीज हो रहा है? सर, जब प्राइस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए अपकमिंग ईयर्स में P भी इंक्रीज होता है. अरे
स्टोरी नहीं सुनाई, स्टोरी का मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है संस्कृति, स्टोरी तो सुनाई नहीं तुमने। सर ये assumption लेके चलते हैं ना कि y is equals to yn, n is equals वो तो to तुमने अजम्पशन बता दी मुझे तो स्टोरी सुननी थी। स्टोरी में क्या किस फॉर्मेट में चल रहा है? यस नन्ना। Sir, the wages they ask also will increase if Alright. expected price increases. ठीक है, वेजेस इंक्रीज एंड देन And as a result, the price will increase. एब्सोल्युटली। देखो संस्कृति, स्टोरी बताओ ना। देखो वो तो सब कुछ लॉजिकल के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से हर कोई बता देगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पीई इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या? वेज से हमारे पास दो ही रिलेशन थे ना यार, हमेशा याद रखो हमारे पास दो ही रिलेशन है, एक वेज सेटिंग रिलेशनशिप है, एक प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप है। प्राइस सेटिंग 1 + MW। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पीई अगर मेरे ये बढ़ रहे हैं, पीई बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में बहुत इन्फ्लेशन होने वाला है, तो मैं पहले से ही वेज ज़्यादा मांगना शुरू कर देता हूँ, मैं अपनी वेज इंक्रीज़ कर दूंगा। अगर मेरी वेज इंक्रीज़ हो गई तो उस बेचारे की एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगा। सिंपल, समझ में आया संस्कृति? 2 स्टेप। yes sir। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक ये पूरा एनालिसिस देखा, हमने ये पूरा देख लिया। हमने कहा कि अगर प्राइस विल बी मोर दैन, इफ़ प्राइसेस आर मोर दैन, इफ़ एक्सपेक्टेड प्राइसेस इंक्रीजेस, तो याद रखना पूरा का पूरा एएस कर्व की सिचुएशन वेयर इट इज़ सिचुएटेड डिपेंड्स एक्चुअली ऑन ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ पीई। अगर आपकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन ऊपर हो जाती है तो आपका एएस कर्व ऊपर हो जाता है, अगर प्राइस की एक्सपेक्टेशन नीचे हो जाती है तो आपका एएस कर्व नीचे हो जाता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग दी लेवल ऑफ एएस। एग्रीगेट डिमांड हमने बिल्कुल बेसिक वहाँ से कर लिया था, एडी एएस वाला जो हमने था वो कर लिया। इसका एडी क्या होगा? इसका एडी यहाँ पर कंजम्पशन हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गई और ये गवर्नमेंट हो गया, 3 सेक्टर, और मनी सप्लाई हो गया आपका ये, तो उसका ये बेसिकली आईएस की इक्वेशन हो गई, ये उसकी एलएम की इक्वेशन हो गई। एंड आईएस एलएम जहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे वहाँ पर इनका आउटपुट बन जाएगा। अगर आप प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दोगे तो आपके पास डिमांड करवा जाएगा। यहाँ तक सबको पूरा क्लियर है। एंड हमने कहा कि वाई जो आउटपुट होगा गुड्स मार्केट में वो डिपेंड करेगा मनी सप्लाई के ऊपर, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड वापस बाहर हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो बाहर हो जाएगा, टैक्सेस कम हो जाएंगे तो बाहर हो जाएगा। तो नेगेटिव प्लस प्लस, ये इज दिस क्लियर और नॉट? किसी को भी यहाँ तक डाउट है? ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, फिर हमने दोनों को इक्विलिब्रियम पे ले गए एंड वी सॉ दैट अब यहाँ से हमारा टफ पार्ट शुरू आता है। नाउ कैन समवन टेल मी what kind of problem is there in this market? Let's ask खुशी, इस मार्केट में क्या दिक्कत है? Sir, हाँ, so output is greater than natural rate of output. तो शॉर्ट रन में क्या होगा खुशी? शॉर्ट रन में क्या होगा? Is there a viable equilibrium in short run? Kashish, is it a viable equilibrium in short run? क्वेश्चन समझ में आया सबको? My question is this okay? 3-4 लोगों ने yes बोल दिया। yes, this is a viable, क्योंकि शॉर्ट रन में याद रखो, अब शॉर्ट रन के अंदर हमारा एडीएस यहाँ पर गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, गुड्स मार्केट भी देखो, याद रखना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग गुड्स मार्केट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मनी मार्केट। ठीक है, ये दोनों मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस इज रिप्रेजेंटिंग एएस किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी को याद है? एएस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेबर मार्केट। ब्यूटीफुल गाइस, चैंपियन बन रहे हो वो सारे के सारे मैक्रो के अंदर। ठीक है, अभी 2-4 महीने में किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके मैक्रो पढ़ा लेना। ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेना। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे पास मैक्रो के अभी कोर्स पढ़ाना होगा। अगर तुम्हें टाइम पास के लिए किसी को 26 के लिए करना हो, तो अगर किसी को कोचिंग पढ़ानी हो तो मुझे बता देना, आई सेट यू अप विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 3 के अंदर और 4 के अंदर। तो इफ़ एनीवन वांट्स टू टेक क्लासेस यू कैन टेक क्लासेस, अपना पूरा तुम्हारा एजुकेशन फाइनेंस हो जाएगा 1 ही साल के अंदर। तो खैर, सो नाउ
when we talk about this, तो हमारे पास ये ADAS का हमारा इक्विलिब्रियम आ गया. अब ADAS का हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया. तो दिस आउटपुट दैट वी हैव गॉट इज ग्रेटर देन द नेचुरल रेट. ठीक है. अब ये नेचुरल रेट से आपका आउटपुट ज़्यादा है, और अगर नेचुरल रेट से ज़्यादा है तो वो शॉर्ट रन के अंदर तो सस्टेन कर सकते हो, बट लॉन्ग रन के अंदर यू कैन नॉट सस्टेन दिस आउटपुट. there are bound to be issues in this. And then what needs to happen? Can anyone tell me क्या होगा इसके बाद? anyone? क्यों होता है एएस कर्व ऊपर शिफ्ट? आई अग्री कि एएस कर्व यहाँ पर शिफ्ट होगा, बट वाई? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म नहीं पता है. Expected prices is increasing. Expected prices are increasing, and because expected prices are increasing, therefore what essentially will happen. तो हमने ये behind the curve जाके बात करी. ठीक है. मीडियम रन के अंदर ये वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला डायग्राम है. किधर चला गया? हाँ, एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो होंगी वो बढ़ जाएंगी. एक्सपेक्टेड प्राइसेस के अंदर योर बिकॉज एक्सपेक्टेशन विल इंक्रीज, तो धीरे धीरे आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, और तब तक जाते रहोगे जब तक आपके प्राइसेस पूरे ऊपर ना बढ़ जाए. और यहाँ पर प्राइस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस एंड y इज इक्वल टू yn, क्योंकि इन ऑल दीज सिचुएशंस प्राइसेस आर मोर देन एक्सपेक्टेड प्राइसेस. तो क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा है, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी, आपका वो फॉल करता रहेगा. एंड देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस यू विल कीप ऑन मूविंग टिल यू रीच दिस पर्टिकुलर आउटपुट. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो. एनीवन हैज़ अ डाउट टिल हियर? Can medium run equilibrium be achieved by shifting down the AS? Shifting down the AS वो ऑटोमेटिक नहीं होगा. शिफ्टिंग डाउन द AS वो ज़बरदस्ती लाना वाली बात हो जाएगी कि उसको नीचे गिराना है. बट वॉट वी आर सेइंग इज ऑटोमेटिक, समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली इज समथिंग दैट वील डू. उसके लिए तो आपको फिर कोई इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करेंगे एडी के बारे में बात करेंगे, और एडी के शिफ्ट के बारे में बात करेंगे. देन इट विल मच मोर क्लियर टू यू कि फिस्कल पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है. वील टॉक अबाउट दैट. बट यहाँ पर Sir, I'm not talking about AD, shifting down of AD. शिफ्टिंग डाउन ऑफ एडी की बात कर रहा हूँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ कि एडी शिफ्ट कैसे करोगे ये बताओ ना. एडी शिफ्ट करने का क्या तरीका है आपके पास? सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके. अरे एडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? कोई पॉलिसी करोगे ना जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, या तो मॉनेटरी पॉलिसी कम करोगे. अरे एडी का शिफ्ट कैसे होता है? एडी का शिफ्ट लेफ्टवर्ड कैसे होगा? या तो रिडक्शन इन मनी सप्लाई करोगे, या आप टैक्सेस बढ़ा दोगे, या फिर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दोगे, या इन्वेस्टमेंट गिराओगे. यस और नो? ठीक है. तो ये तो डेलिबरेटली आपने आउटपुट नीचे कर दिया ना. तो what you will try to do, you can do that as well. So you can do that as well. That is also something which is a policy, which can be a policy measure, but automatically कहाँ जाएगी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो automatically you will reach a higher price level. So typically what you are saying, Kriti, is what the RBI tries to do. Can you think of this कि जब मार्केट के अंदर excessive heating हो रही होती है, इकॉनमी अपनी बेसिकली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवर हीटेड होती है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा चल रही है इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ ओवर हीटिंग. देन इकॉनमी को कूल डाउन करने के लिए क्या करता है सेंट्रल बैंक? इकॉनमी को कूल डाउन करने के लिए सेंट्रल बैंक यही तो करने की कोशिश करता है कि मनी सप्लाई खींचने की कोशिश करी, और इसको खींचने की कोशिश करा.
क्या कहते हैं योर इन्वेस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सरकार खींचने की कोशिश करेगी, बट बेसिकली जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को खींच के कम करने की कोशिश करेगी. सो दिस विल बी द इंटेंशन ऑफ द आरबीआई, बिकॉज अगर छोड़ दिया देन व्हाट विल हैपन कि वो प्राइस जितने से इंक्रीज हुआ था उतने से आपका ये इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द आरबीआई विल एक्चुअली ट्राई टू डू. समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग बाकी लोगों को? Yes, sir. There is something, मतलब this is a policy, this is basically a policy measure that you're going to do in general. ये हम मनी एंड बैंकिंग के अंदर फिर बात करेंगे कि अच्छा आरबीआई कैसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड we'll cover this in money and banking even further. जब हम there is something called as interest rate targeting and monetary targeting. Have you heard of this interest rate targeting, monetary targeting? तो ये जब हम वहाँ पर कवर करेंगे ये पूरा एस्पेक्ट. ठीक है, उसमें उस टाइम पे भी ADAS, ISLM ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो उससे और ज़्यादा समझ में आएगा. तो दिस इज तो ऑटोमेटिकली नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स के केस में आपका AS कर्व ऊपर पहुँच गया और आपके पास ये इक्विलिब्रियम आ गया. देन अब हमने मॉनेटरी लास्ट चीज़ जो हमने करी, हमने कहा कि यार हमने एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर ली है. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते के साथ ही वी नो दैट आउटपुट इज़ मोर देन दैट, एंड देन वी ऑल्सो नो दैट लॉन्ग रन के अंदर AS कर्व जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. बट हाउ इज़ दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसपायर इज समथिंग लाइक दिस कि आपका रिमेंबर ये यहाँ पर हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, तो जिसका जो भी डाउट है वो देख लेना कि हम यहाँ पर थे इनिशियली और यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पे थे. गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम पे है, मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम पे है, लेबर मार्केट भी इक्विलिब्रियम पे है, एंड वी हैव रीच्ड our natural rate. But then what suddenly happens is that you have an expansionary monetary policy. If you have an expansionary monetary policy, then AD curve will shift to the right. But ध्यान रखना जब expansionary monetary policy हो रही है तो suppose this is M1 by P1. ठीक है, अब क्या हुआ जब एकदम से एक्सपैंड करा तो आपका जो वो हो गया M2 by P1. ठीक है, सपोज दिस इज P1 और ये हो गया. बट अब क्योंकि आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करी है बट AS कर्व आपका कोई वो तो है नहीं कि इज बेसिकली अ फ्लैट AS कर्व. अब क्योंकि फ्लैट AS कर्व नहीं है इसलिए आपके प्राइसेस भी इंक्रीज करे. आपके प्राइसेस हो गए P'. तो जैसे ये P' हो गया तो डोंट यू थिंक कि LM कर्व थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा M2 by P1'. ये सबको समझ में आ गया था कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ हुआ फिर यहाँ से यहाँ चला गया. ठीक है, यस और नो? और इस पॉइंट पे आपका जो ऊपर जाके आएगा इस पॉइंट पे आपका Y1 आ जाएगा. दिस इज व्हाट इज Y1. यस और नो? कम ऑन गाइस. आज मैं आपको बहुत सारी मैथ्स कराने वाला हूँ. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये प्राइसेस आ गए बट अब ये शॉर्ट रन के अंदर तो इक्विलिब्रियम ठीक है, बट व्हाट विल हैपन इन लॉन्ग रन? लॉन्ग रन के अंदर अभी भी हमारे जो प्राइसेस हैं वो मेरे क्या कहते हैं मेरे जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस है उससे ज़्यादा है. अब व्हाट विल हैपन इज अल्टीमेटली योर प्राइसेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इट विल बी रीइंफोर्सिंग कि प्राइसेस आपके विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, योर वेजेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो सब कुछ होता रहेगा और आपके प्राइसेस तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक आपका ये जो है ये वापस एक लेवल पे नहीं आ जाता विच इज़ P2. इसने नीचे डायग्राम बनाया क्या? सो थिंक ऑफ दिस एज यहाँ पर ये आ गया AS' और ये P2 पे आ गए और P2 पे दिस इज इक्वल टू M2 by P2. ठीक है, तो जितने से आपके मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ था, मेरा मनी सप्लाई मान लो इनिशियली 2 times हो गया था, M2 इज 2 times M1. ठीक है, तो नाउ माई प्राइसेस हैव ऑल्सो बिकम सेम क्योंकि वो सेम लेवल पे आ गया. तो माई प्राइसेस हैव ऑल्सो बिकम सेम. माई P2 विल बी ट्वाइस ऑफ P1. तो सो दैट M1 by M2 is equal to M2 by P2. So this is how my AS curves moves
and I go back to P is equal to PE, where P2 is equal to PE, and I am back at my natural rate of employment, which is also corresponding to natural rate of output is equal to natural rate of employment is equal to natural rate of unemployment. Is this idea, and this exactly is called as neutrality of money, because what has happened is the real factors have not changed, the output is the same, and only the prices have increased, nothing else has changed in the economy. For that matter, the interest rates have also come back. So this is exactly what is neutrality of money. This is a very very important diagram. यूजली लोग न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के लिए HL आहूजा से एक डायग्राम बनाते हैं. यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम. आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. मुझे अगर एक एस्पिरेंट मिलेगा जो मुझे ISLM और EDAS के साथ में मुझे अच्छा सा डायग्राम बना के दे देगा और मुझे पूरा समझा भी देगा, आई एम गोइंग टू गिव मोर मार्क्स टू दिस पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग मी द मैथ बिहाइंड इट एंड द लॉजिक बिहाइंड इट and diagrammatically, and then you can also then later on talk about what Friedman says, and maybe talk about the advanced economies or how they are facing inflation in the current times. कि जो Friedman का statement था, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Is the idea clear? यहाँ तक आधा घंटा लगा, आधे घंटे के अंदर हमने अब 3 बार मैंने आपको करा दिया प्रॉब्लम. अब 3 बार कराने के बाद भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा तो अपने आप पढ़ने का वजह से रह जाएगा, मतलब एटलीस्ट नॉट फ्रॉम माई साइड. इट्स जस्ट दैट यू माइट रीड आवर ऑफ रीडिंग एंड दैट्स इट. दैट्स अबाउट इट. उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लो और शॉर्ट नोट्स बना के आपका काम ख़त्म हो गया कि योर चैप्टर इज़ डन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस. अब इनके ऑपोजिट केसेस जो हैं वो मैं पूछूंगा, तो ध्यान रखना कि ऑपोजिट केसेस भी सोचने हैं कि ऑपोजिट केसेस क्या होंगे. अभी तो इंक्रीज दिखा दिया, डिक्रीज दिखा दूंगा तो आप उसको कैसे आर्ग्यू आउट करोगे. सो यू नीड टू फिगर दैट पार्ट आउट. नाउ अ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट. नाउ अब क्या होता है कि सपोज सरकार ने कहा कि मैं बजट डेफिसिट डिक्रीज़ करूँ. बजट डेफिसिट डिक्रीज़ करने का मतलब आप अच्छा खासा यहाँ बैठे हुए थे, AD इज इक्वल टू AS यहाँ बैठे हुए थे. अब सरकार ने कहा कि मुझे बजट डेफिसिट अपना कम करना है. बजट डेफिसिट कम कर लिया तो गवर्नमेंट ने अपना G कम कर लिया, G कम कर लिया तो AD कम कर लिया, AD कम कर लिया तो आप यहाँ से बैठे बैठे एकदम से आप यहाँ पहुँच गए. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस केस? What is the problem in this case? Is this a viable solution in short run, Nandana? Short run, yes. Okay. संस्कृति लॉन्ग रन में क्या होगा? नंदना, माइक इज ऑन. संस्कृति लॉन्ग रन में क्या होगा? Sir, in long run, y has to be equal to natural rate of output. ठीक है, तो कैसे जाएगा? यही तो सोचना है. कशिश, कृति. See, there was some network problem. अच्छा, छोड़ो. So see, what will happen is that you have reached this level जहाँ पर prices are now less than expected prices. What do you think will happen with this? Prices are less than expected prices. यही होगा. ये देखो ना, अभी ISLM के उस पर देखते हैं. देखो क्या हुआ, समझने की कोशिश करो. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना IS कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया. हम पहले A पॉइंट पे थे ISLM पे, हमने यहाँ से B पॉइंट पे पहुँच गए. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया. इस B पॉइंट क्लियर? यस और नो? अभी कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. देन व्हाट हैपन्स, जब मैंने AD को नीचे करा तो मेरा प्राइस लेवल नीचे गिरा.
जब प्राइस लेवल नीचे गिरेगा, डोंट यू थिंक कि मेरा जो LM कर्व है वो थोड़ा सा नीचे आएगा? तो मेरा पहले था M1 बाय P1, ठीक है। अब बिकॉज AD के नीचे आने की वजह से मेरा डिफ्लेशनरी इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से क्या कहते हैं, उसकी वजह से मेरे प्राइसेस गिरे हैं। मेरे प्राइसेस गिरने की वजह से दिस विल बी M1 बाय P1 डैश। अगर मैं इसको P1 डैश बोल दूँ तो मेरा LM कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो मेरे पास जो फाइनल इक्विलिब्रियम आया वो मेरा आउटपुट एक्चुअली में y डैश हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? जैसे हमने मॉनेटरी इंक्रीज में दिखाया था वैसे ही हमने AD डिक्रीज में दिखाया। यस और नो? क्लियर? अब बिकॉज योर आउटपुट इज लेस देन योर दिस थिंग, we know when my output is less than yn, we also know that my prices are less than expected prices. अब prices are less than expected prices, तो आपके प्राइस रिविजन, वेज रिविजन गिरता रहेगा, और वो गिरता रहेगा तो आपका ये जो LM कर्व है और नीचे आता रहेगा, और ये M1 बाय P2 पे हो जाएगा। आपके प्राइसेस जो हैं वो गिरते रहेंगे, और प्राइसेस गिर के इस लेवल पे आ जाएगा आपका ये AS कर्व, ठीक है। और इस लेवल पे आपका जब AS कर्व आ जाएगा तो आप y इज इक्वल टू yn पे आ जाओगे। आपका इंटरेस्ट रेट गिर गया, और यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू P2 पे आ जाओगे, एंड एट प्राइस इज इक्वल टू P2 दिस इज इक्वल टू PE। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपेक्टेशन चलेगा, एंड यू विल रीच दिस लेवल ऑफ yn। नाउ लेट मी गो थ्रू दिस। देखो, before the changes the equilibrium is at point A, but because of fiscal policy there's a decrease in output. The real money because the price decline in response to decrease in output, the real money stock increases, leading to a partial offset of the LM curve, shifting it down to LM dash. Then and the output is reached to A dash. Now both output and interest rate are lower than before the fiscal contraction. Now अभी हमें ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा शॉर्ट रन के अंदर, व्हाट विल हैपन, बट सो लॉन्ग एज द आउटपुट रिमेन्स बिलो द नेचुरल रेट द प्राइसेस कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, leading to further decline in monetary stock. And because monetary stock declines your shift, there is a rightward shift in the LM curve, and it will keep on happening till the point reaches AA dash, where LM curve becomes a LM dash, and the output is back at its natural rate, the interest rate has reduced, and what has happened, जितने से आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ था उतने से ही आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, एंड दैट हैज़ लेड टू कि आपका कोई इम्पैक्ट आपका आउटपुट के ऊपर नहीं पड़ा है. So in medium run, a reduction in budget deficit unambiguously leads to a decrease in interest rate and an increase in investment. Is this idea clear or not? अब बताओ सारे के सारे. पक्का सबको समझ में आया? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. You should be absolutely clear in your perspective what is happening. ठीक है. फिर उसके बाद उसकी समरी बता रहा है, ये सारी उसकी समरी है. ठीक है. Now I want you to take 2-3 minutes, draw this diagram. पहले वो वाला डायग्राम बनाओ, फिर ये वाला डायग्राम बनाओ, and see you are able to correctly draw these diagrams or not. कोई बात नहीं खुशी. Please draw these diagrams. Okay guys. तो हमने क्या बात करी थी? लेट मी रिपीट दिस. व्हाट आई टॉक्ड वाज कि हमारे पास ADAS है, वो इक्विलिब्रियम पे है एट G, जहाँ पर हमारा गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम है, फाइनेंशियल मार्केट भी इक्विलिब्रियम है, लेबर मार्केट भी इक्विलिब्रियम है, एंड Y भी आउटपुट अपने नेचुरल रेट पे है. एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. इट्स अ परफेक्ट हाउस. नाउ जस्ट गिव मी 1 सेकंड फोकस. मेरा बैटरी चला जाएगा फोन का. Yes. So we had done this much. Now अब इसके बाद क्या हुआ कि now
now what has happened is that we have reduced the government deficits. If we have reduced the government deficits, we reach at point A dash. अब A dash एक्चुअली में A dash कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर पहले तो अगर मेरा वो गिरता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरने की वजह से मेरा जी गिर रहा है, तो जी गिर के एकदम से यहाँ पर आ जाना चाहिए था. बट बिकॉज आपका आउटपुट डिक्लाइन के साथ में आपके प्राइसेस भी डिक्लाइन करते हैं. दिस इज हाउ योर AS इज. देयरफॉर बिकॉज योर प्राइसेस डिक्लाइन, आपका रियल मनी सप्लाई भी पहले अगर M1/P1 था तो वो M1/P1 डैश हो जाएगा. ये P1 डैश हो गया अगर ये P1 है तो उसकी वजह से आपका LM कर्व थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होगा, इवन इन शॉर्ट टर्म, और आप यहाँ पर इस A डैश पे आओगे, जिसकी वजह से आपका आउटपुट Y डैश है एंड यू हैव रीच्ड दिस लेवल. इसने पूछा था खुशी, समझ में आया यहाँ तक कि शॉर्ट रन में हम A डैश तक कैसे आ रहे हैं? ठीक है. अब उसके बाद what happens is, because you're at A dash, if you see your prices are less than price expectations. अगर आपके prices are less than price expectation तो आगे जाके आपकी जो wages होंगी वो भी गिरेंगी, क्योंकि remember कि आपके अगर price expectation ज़्यादा है और हाँ, if prices are low, then what happens is that your wages will fall and then your further prices will fall. And because of all of this, your further prices will keep on falling, and because your further prices are keep on falling, हाँ, price less than PE, तो रियल प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, तो आगे जाके आप वेज नेगोशिएटर क्या बोलेगा, जब आप नेगोशिएशन करोगे, जब आप वेज सेटिंग रिलेशनशिप में हो, तो आप ये बोल रहे हो ना FUE, ठीक है, UZ, तो आप बेसिकली यही बात कर रहे हो यार. आप कहोगे कि यार पिछली बार तुमने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी थी बट एक्चुअली में प्राइसेस कम थे, तो वो कहेगा कि यार वेजेस भी अब कम दूंगा, मैं वेजेस कम दूंगा तो आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू 1+MW. तो बारगेनिंग में, अब बारगेनिंग चिप आपके पास कम हो गई, क्योंकि पिछली बार आपने रियल वेज ज़्यादा ले ली थी, तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये कम हो गया. और ये कब तक कम होता रहेगा, जब तक प्राइस विल कम बैक टू PE, और वो लेवल वो होगा जब तक आपका ये M1/P2 ना हो जाए, जिसका मतलब कि आपका जो AS कर्व है वो यहाँ से यहाँ ना आ जाए, जहाँ पर ये P2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू PE, और ये आपका PE हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू P2, और आपका आउटपुट वापस इंक्रीज होके YN पे आ गया, और आप यहाँ आ गए, और आपका LM कर्व यहाँ पहुँच गया अल्टीमेटली. यस और नो? खुशी? ऑल राइट, ये सारा डिस्कशन है. यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस डिस्कशन. नाउ द होमवर्क दैट आई हैव फॉर यू इज़ ये प्राइसेस वाला पढ़ लेना. फ्यूल प्राइसेस की वजह से क्या होगा, डायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल प्राइसेस. जस्ट रीड इट थ्रू, इट इज़ सिंपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ jiffy. ठीक है. एंड देन is this table clear to you now? Give it 2 minutes, give it 1 minute and read the table and then tell me if it's clear. 1 minute दो, फिर हम समझेंगे. ऐसे पढ़ो इस टेबल को, शॉर्ट रन, मीडियम रन, लॉन्ग रन. बेसिकली पहले अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन करता हूं तो क्या होता है, डेफिसिट रिडक्शन करता हूं तो क्या होता है, G डिक्रीज, M इंक्रीज. कैन आई से शॉर्ट रन के अंदर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, यस और नो? हमने यही तो करा था, एडी कर्व यहाँ मूव कर रहा था, याद है? तो दिस इज देयर. हमें ये भी पता है कि ये कैसे हो रहा था, ये मूव हो रहा था क्योंकि ISLM के अंदर ये और ये, याद है, ये वाला पॉइंट आ रहा था LM, तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा था. ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया. प्राइसेस में स्मॉल डिक्रीज आएगा, ये भी हमने पता चल गया. प्राइसेस, हाँ, स्मॉल इंक्रीज, वही स्मॉल इंक्रीज आएगा, ये भी हमें पता चल गया. क्लियर? लॉन्ग रन में नो चेंज, इंटरेस्ट रेट वापस पूरा हो जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज. क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू वी कॉल दिस इंटायर, पहले वाले उसको क्या बोल सकता हूँ मैं? Come on guys, chat window पे, it should have been blasted by now. इस पूरे इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? नॉर्म, न्यूटन
न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ब्यूटीफुल। तो ये आपका न्यूट्रलिटी मनी हो गया, जितने से आपने मनी सप्लाई चेंज किया उतने से आपके प्राइसेस चेंज हो गए। डेफिसिट रिडक्शन में हमने देखा कि आउटपुट आपका डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होगा, देयर विल बी ए डिक्रीज इन स्मॉल डिक्रीज इन प्राइसेस, लॉन्ग रन में आउटपुट चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और आपका मनी प्राइस लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। देन जस्ट रीड आउटपुट फ्लक्चुएशन, शॉक प्रोपगेशन मैकेनिज्म, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट रीड दोज फंडास। ठीक है, नाउ कम्स माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, रेडी फॉर दिस। अब हम फिलिप्स कर्व शुरू करने वाले हैं। फिलिप्स कर्व में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओल्ड फिलिप्स कर्व या ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सपेक्टेशंस ऑगुमेंटेड फिलिप्स कर्व या फिर मॉडर्न फिलिप्स कर्व भी बोलेंगे उसको। ठीक है, और इसी के बाद हम करेंगे समथिंग कॉल्ड एज लूकस क्रिटिक। ठीक है, लूकस क्रिटिक, जहाँ से आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। न्यू क्लासिकल जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है लूकस क्रिटिक से। लूकस, सार्जेंट, ये लोग सारे न्यू क्लासिकल के लोग हैं। ऑल ऑफ यू रेडी? यस नो गाइस, यहाँ तक की मैक्रो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नाउ we're going to talk about Phillips curve, natural rate of unemployment and inflation. अब इनके बीच में आप ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब इन्फ्लेशन इज बेसिकली चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, तो चेंज इन प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट का भी रेट के बारे में बात करेंगे और उनका रिलेशन जो है वो फिलिप्स कर्व जो होगा वो कुछ एक्सप्लेन करेगा। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, बहुत फिलिप्स कर्व के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बच्चे बड़े घबराते हैं नॉन इकोनॉमिक्स वाले, क्या है ये फिलिप्स कर्व, बट एक बार समझ लो तो बहुत ही आसान चीज़ है ना। अब इसको स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं और फिर वो स्टोरी जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं सेम स्टोरी आपको उसमें भी बताऊँगा, इंटरनेशनल में भी एक स्टोरी सुनाऊँगा, बट ग्रोथ में भी एक स्टोरी सुनाऊँगा बड़ी अच्छी। वो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और वो कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, तो वी विल हैव दैट स्टोरी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये फिलिप्स के नाम पे ये था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। ठीक है, नाउ अब फिलिप्स ने क्या किया, उसने 1958 में क्या किया, उसने डेटा उठाया। ठीक है, अब डेटा किसका उठाया, यूके का डेटा उठाया और उसने क्या किया, उसने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को प्लॉट किया एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को प्लॉट किया। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको प्लॉट किया, यूके के लिए प्लॉट किया कई सालों के लिए। एंड उसने कहा कि यार इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के अंदर तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्या आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, और हमें लॉजिक भी हमारे पास यही है कि जैसे जैसे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो दैट मीन्स आउटपुट भी कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है तो बेचारे प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से उसने रिलेशनशिप बनाना शुरू किया एंड उसके बेसिस पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप बना एंड he clearly found a negative relationship between inflation and unemployment when unemployment was low and inflation was high. तो when unemployment जब low था तो inflation high थी, और जब and when unemployment was high inflation was low and often even negative. ठीक है, so this is the relationship that he said. अब उसके बाद क्या हुआ कि पॉल सैमुएल्सन और रॉबर्ट सोलो, बाय द वे ऑल थ्री ऑफ देम हैव गॉट अ नोबेल प्राइज। ठीक है, बट उनको अलग अलग चीज़ों के लिए मिला है। ठीक है, क्या कहते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सैमुएल्सन इज द रिवील्ड प्रेफरेंस एंड सोलो इज फॉर द ग्रोथ मॉडल। तो इन्होंने भी मैक्रो के सारे लोग हैं, इन्होंने भी क्या किया, पॉल सैमुएल्सन माइक्रो मैक्रो सब कुछ करा लेते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिलिप्स कर्व की एक्सरसाइज को फिर से करा, बट इन्होंने यूएस के डेटा के साथ किया एंड उन्होंने CPI इन्फ्लेशन लिया एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम वेरी हाई इन्फ्लेशन, अपार्ट फ्रॉम वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग 30s, there appears to be a negative relationship. They also say there appears to be a negative relationship between inflation and unemployment rate. Now अब उन्होंने इसी कर्व को, तो एक्चुअल में सैमुएल्सन एंड सोलो ने इन द नेम ऑफ द प्रीवियस जिसने जो फाइंडर था, उन्होंने इसको फिलिप्स कर्व बोल दिया। ठीक है, यही
इंडिया के अंदर अगर कोई आदमी ढूंढ लेता तो सबसे पहले अपना नाम डाल देता कि भाई ये तो मैंने ढूंढा है, मेरा नाम होना चाहिए, ये कर हो गया प्रधानमंत्री कर, ठीक है। तो हर चीज़ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और ये कांग्रेस के बारे में होता तो ये राजीव गांधी कर हो जाता, ठीक है, क्योंकि हर आदमी अपने नाम पे चीज़ रख देता है, पुराने वालों को सोचता नहीं है या फिर अपने फैमिली के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी फिलिप्स कर्व बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बेसिकली come out with this name and it appeared to imply that country can choose। तो बेसिकली उनका पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या था? उनका पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन था कि यार या तो अनएम्प्लॉयमेंट झेल लो या फिर इन्फ्लेशन झेल लो, ठीक है। तो दोनों के बीच में है एंड कंट्री कुड अचीव ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ इट वाज एबल टू टॉलरेट हायर इन्फ्लेशन और इट कुड अचीव प्राइस स्टेबिलिटी बट इट वाज, अगर प्राइस स्टेबिलिटी या ज़ीरो इन्फ्लेशन रेट अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेना पड़ेगा। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है या नहीं है? अभी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैथ्स कराऊंगा। आज की क्लास में काफ़ी मैथ्स होनी है, ठीक है। अब उसके बाद 1970s के अंदर क्या होता है? अब 1970s के अंदर दिस रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन दैट स्टार्ट्स कमिंग अप। तो अगर आप देखोगे डेटा, देखो if you see this data, this is the data of 1900 to 1960s। तो कैन यू सी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका इन्फ्लेशन रेट जो है, यहाँ इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो रहा है। तो अगर मैं इसकी एक लाइन बनाऊँ, बेस्ट फिट लाइन बनाऊँ, तो कुछ इस तरीके से बनेगी, येस और नो? बेस्ट फिट लाइन समझते हो सारे के सारे? रिग्रेशन लाइन बनाऊँ इसकी तो इस तरीके से एक रिग्रेशन लाइन बनेगी। तो यही वो बता रहे थे बेसिकली। अब इन्होंने कहा कि 70s के अंदर व्हाट दिस रिलेशनशिप ब्रोक डाउन, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में आपका आउटपुट भी गिर रहा होता है और प्राइसेस भी गिर रहे होते हैं। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और प्राइसेस भी नहीं इंक्रीज हो रहे होंगे। तो ये जो सॉरी और इन्फ्लेशन भी हो रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और इन्फ्लेशन भी हो रहा होगा। सो प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे और आउटपुट भी गिर रहा होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी बट इन्फ्लेशन भी होगा। तो ये जो रिलेशनशिप था, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप था, इट स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। इट हैड फेस्ड, द कंट्री हैड फेस्ड, एंड कैन यू टेल मी कि व्हाई इन 70s दिस हैपेंड? कैन समवन टेल मी? come on guys, come on, you're all UPSC aspirants. Think of major events in 1970s. It happened 2 times. Oil price shock, absolutely, 1973 and 1974 and then 1979। तो दोनों में ऑयल शॉक लगा, both of them majorly led by oil, this wars in the Gulf area, and because of in this crisis, what had happened was that this basically curve broke down, and this is called as breakdown of Phillips curve. It is also called as phase of breakdown of Phillips curve. Now there was both high inflation and high unemployment, clearly contradicting the original Phillips curve, and then the relation reappeared, but it reappeared as a relationship between unemployment rate and the change in inflation rate। So अब उसके बाद जब modified curve आया, तो ध्यान रखना modified केस में क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ और यहाँ चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट? इज देयर अ रिलेशन, इज देयर अ डिफरेंस? मुझे बता दो। 5 to 7% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है कि चेंज इन, और अगर 7 to 10 हो रहा है तो इस केस में इन्फ्लेशन रेट पे क्या इम्पैक्ट है और चेंज इन इन्फ्लेशन रेट पे क्या इम्पैक्ट है? मुझे कैलकुलेट करके बता दो। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज
इन्फ्लेशन रेट 5 से 7% हो गया. What is the change in inflation and change in inflation rate? Rate of change in inflation. Change in inflation rate. और inflation rate क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? अब समझ में आया क्वेश्चन सबको? CSAT का सवाल पूछ लिया मैंने. आजकल तो नेट के एग्जाम में भी आता है. चेंज इन इन्फ्लेशन 2%. गुड. कैन समवन टेल मी रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन? सबको 40% सबको समझ में आया? 42. आप क्या हुआ है, आप क्या करोगे? 7 minus 5 upon 5. This is this 2 by 5 which is 40% is the rate of change of inflation. समझ में आया? रेट इज ऑलवेज इन परसेंटेज टर्म्स कि क्या चेंज, किस तेजी से चेंज आया. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दिस, रिमेंबर दिस. मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि लोग बाद में जाके मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे टीचरों से पूछ लेना. तो अगर उनको भी पता हो कि ये इन्फ्लेशन क्या है और रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ऐसी हवा में करा दिया होगा. सबने इकॉनर्स में करा है? ऑल ऑफ यू हैव डन दिस रीडिंग, आई एम श्योर. यस और नो? ऑल ऑफ यू हैव डन दिस रीडिंग? Did you happen to underscore this point in the class कि डिफरेंस क्या आ रहा है फिलिप्स कर्व के अंदर? देखा, पता था मुझे. तो दिस इज व्हाई एट टाइम्स यू नीड टू रीड. और ये ना, ये सेम चीज़ आपको अभी नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि नोट्स में वो चीज़ अपेरेंट नहीं होती. जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या क्या नुआंसेस हैं, छोटे छोटे नुआंसेस हैं, वो आपको समझ नहीं आते हैं. इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट, लोग कहते हैं ना कि अच्छा, जैसे आज मुझे वो बोल रही थी, कशिश बोल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए. तो माय आइडिया वाज कि ठीक है, अभी तुम करने को किसी चीज़ को लो, बट टेक्स्ट ज़रूर पढ़ो, क्योंकि टेक्स्ट से एक ओरिजिनलिटी की फील आएगी. बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, बट समथिंग लाइक अ बिपिन चंद्रा इज़ अ बिपिन चंद्रा. तो तुमने एक गाथा पढ़ लिया, उसके बाद तो ठीक है, छोटी बहुत कुंजियाँ वंजियाँ तो चलती रहेंगी. बट वंस यू गेट अ फील ऑफ द सब्जेक्ट देन देयर इज नथिंग लाइक दैट फीलिंग. तो अब today in United States, high unemployment rate typically leads not to low inflation but decrease in inflation over time. और कन्वर्सली लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा तो इट डज नॉट लीड टू इन्फ्लेशन बट इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम. तो चेंज इन इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट नहीं है. सो दिस इज अ मेजर, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है. तो अब चेंज इन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप आ गया. And the idea of this chapter will be to explore this mutation, the Phillips curve has mutated, and more generally you will understand the relationship between inflation and unemployment. And उसके साथ में finally we will see that Phillips discovered was basically जो ultimately Phillips ने जो discover किया was nothing but the aggregate supply relationship, and the mutation of the Phillips curve came from the changes in which way people and firms form expectations. So expectations augmented Phillips curve. तो उसने बेसिकली AS कर्व को ही रीफॉर्मुलेट किया है, बट AS कर्व में भी लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस कैसे बना रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, कि वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं, वो किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है कि आपका AS कर्व फ्लैट होगा कि आपका AS कर्व कंप्लीटली अपवर्ड स्लोपिंग होगा. नाउ कैन यू थिंक ऑफ वन क्वेश्चन इन द PYQ दैट वी डिड. हमने कहा था ना कि एक क्वेश्चन किया था कि कीन्स की थ्योरी में अजम्पशन की जाती है कुछ प्राइसेस को लेके. किसी को याद आ रहा है वो क्वेश्चन? ऑन फ्राइडे आई डिड ओनली क्वेश्चंस, रिमेंबर आफ्टर क्लास में मैंने क्वेश्चंस किए थे. देयर वाज अ क्वेश्चन इन द PYQs व्हिच टॉक्ड अबाउट दैट
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइस इन द प्रीवियस, जो पिछले पीरियड में प्राइस होगा वही इस पीरियड में प्राइस रहेगा, याद आ रहा है वो? इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो व्हाट विल बी द केस ऑफ एएस कर्व, कैसा दिखाई देगा फिर? अगर वैसा होगा तो एएस कर्व कैसे दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट। देखो प्राइसेस चेंज ही नहीं हो रहे ना, प्राइसेस चेंज ही नहीं हो रहे हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल एएस कर्व हो गया। अब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कीनेसियन एंड क्लासिकल? समझ में आना शुरू हुआ पूरा कि वो स्टोरी मन में बैठनी शुरू हुई सबको, क्या चल रहा है? all right so this is what we are going to do. Let's discuss this now. First part में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें समझने में, एंड देन उसके बाद फिर मतलब आज आई विल कवर, ये तो करना ही है, पूरा डेरिवेशन करना है, वेज प्राइस स्पाइरल करना है, दिस वी हैव टू डू, दिस वी विल डू, दिस वी विल डू, modified Phillips curve, we'll talk about natural rate, neutrality of money, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी तक करेंगे। फिर उसके बाद आई विल डील विद ये वाला पोर्शन जो है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के बाद ये वाला पोर्शन जो है लूकस क्रिटिक वाला, आई विल डू टुमारो विद यू, बिकॉज लूकस क्रिटिक के साथ क्या है कि वो फिर मैं उसके अंदर भी चला जाऊंगा साथ में। आई विल इमीडिएटली जंप टू फ्रीडमैन एज वेल, ठीक है। एंड द आइडियाज़ की कुछ भी अगर आप किसी चैप्टर का छोड़ दो तो अच्छा होता है कि पिछला वाला सारा रिवाइज करना पड़ जाता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस पोर्शन। Now we already know this relationship, ठीक है। हम सबसे पहले आपकी सारी इक्वेशन देखना, एक टाइम आएगा आपको एक पेज पे 17-18 इक्वेशन लिखनी होंगी, और 17-18 इक्वेशन आपने एक साथ सारी लिख दी तो यू हैव रीच्ड फ्रॉम वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप टू फिलिप्स, मॉडिफाइड फिलिप्स का। एक साथ सारी इक्वेशन लिख दो, आपको पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमी, ये वाला पूरा सेक्शन रिवाइज हो गया आपका ना। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ कहाँ से आई थी? एनीवन रिमेंबर्स? एएस कर्व, अभी ये एएस कर्व नहीं है कृति, ये गलती कर दी, ये एएस कर्व नहीं है। एएस कर्व होने के लिए यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, यू आर रॉन्ग। किसी को पता है क्यों कृति गलत है? सर यू की जगह 1 माइनस वाई बाय एल होगा। यस यस यस, समझ में आया कृति? अच्छा यस सर, तुमने ही तो आंसर कर दिया। तो दिस इज व्हाट वी गॉट। हमने वेज सेटिंग 1 + MP और प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप, इन दोनों को एक साथ लेके आए। इसको हाँ ये जो इक्वेशन ये हमने यहाँ डाल दी तो हमारे पास ये प्राइस की इक्वेशन आ गई। सो दिस इज हाउ, सॉरी PE, सो दिस इज हाउ, नहीं क्या कर दिया मैंने, सॉरी गाइस। P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PE FUC एंड P इज इक्वल टू 1 + M W, ठीक है। यहाँ से आई तो हमने दोनों को इक्वेट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें u की जगह 1/L ये लिख दो तो आपकी ये ऐसी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इसका एक फंक्शनल फॉर्म ले लेते हैं। किसी भी चीज़ का फंक्शनल फॉर्म ले सकते हो। हमें पता है कि क्या कहते हैं, हमारा जो वेजेस है उसका रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी सेड, नेगेटिव रिलेशनशिप विद दिस एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद दिस। तो हमने कहा कि 1 - अल्फा u लिख देते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, और z लिख देते हैं, z के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो वी हैव डिफाइंड अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल फॉर्म which basically relates wage rate to unemployment and to the catch-all factor. ये चीज़ क्लियर है कि हमने assume किया है, we have assumed a specific form, yes or no?
ये स्पेसिफिक फॉर्म समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, हमने यहाँ ले आया, ठीक है। हमने बस ये यहाँ पर ये लिख दिया, क्लियर, यस नो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैसे आए, हमने इसको इस फॉर्म में कैसे लिख दिया कि इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब इसके लिए वी नीड टू गो टू द अपेंडिक्स, ठीक है, लेट्स गो टू द अपेंडिक्स। देखो हमारे पास ये थी और हमारे पास नेक्स्ट लाइन ये आ रही थी, यस और नो, ठीक है। अब हम कैसे जाएंगे, हमने क्या किया, हमने अपनी ये लिखी और हमने हर के नीचे प्राइस से हमने अब टी सब्सक्रिप्ट लिखने लिख दिया। टी सब्सक्रिप्ट बेसिकली डिफाइंस फॉर टाइम, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल 2024 2025, तो मैं टाइम का सब्सक्रिप्ट ले रहा हूँ यहाँ पर। तो कैन आई राइट दिस एज दिस, मैंने यहाँ पर जितनी भी टाइम के साथ चीज़ें हो सकती हैं, प्राइसेस टाइम के साथ हो सकते हैं, ये भी टाइम के साथ हो सकता है और ये भी टाइम के साथ हो सकता है, क्लियर, कि मैंने टाइम के सब्सक्रिप्ट ऐड करें, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट पूछ लो। बेसिकली आई एम थिंकिंग ऑफ अ टाइम सीरीज राइट नाउ, तो मैंने ये टी लिख दिया है, कम ऑन गाइस, ठीक है, ओके। देन व्हाट आई हैव डन इज I have divided both sides by PT minus 1। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, अगर मैंने आपको इन्फ्लेशन याद है, मैंने बजट और सर्वे की क्लास में आपको इन्फ्लेशन बताया था। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है कि CPI का नंबर जो होगा, जो अगस्त 2024 में माइनस CPI का इंडेक्स इन अगस्त 2023 अपॉन CPI का नंबर, इंडेक्स नंबर इन अगस्त 2023, ठीक है। दिस विल बी इन्फ्लेशन, सो दिस विल, ये मेरे पास इस तरीके से मेरे पास इन्फ्लेशन का रेट आ जाएगा। सो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट PT माइनस 1 अपॉन PT माइनस 1। कैन आई राइट इन्फ्लेशन लाइक दिस, इन्फ्लेशन रेट, यस और नो? Isn't this the same thing? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी तो यही है। क्लियर सबको यहाँ तक? तो मुझे देखो ना, अल्टीमेट मेरा एम यहाँ पर पहुँचना है, तो उसके लिए मुझे उसको PT माइनस 1 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड को कर दिया, यहाँ और यहाँ। अब मैंने क्या किया, अब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ। अब मेरा फोकस सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरी PT अपॉन PT माइनस 1 है। अब इसमें प्लस और माइनस PT माइनस 1, अगर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करनी है ना, PT प्लस और PT माइनस, जो PT प्लस करा तो वो तो उसको तो अलग कर सकता हूँ कि वो 1 आ जाए, और बाकी बचा क्या, PT माइनस PT माइनस 1 अपॉन PT माइनस 1। दिस is equal to 1 plus inflation at period T, yes or no? So can I write left hand side as 1 plus pi T? Come on guys, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने सेम चीज़ राइट हैंड साइड के बाद भी करी। राइट हैंड साइड में देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेड ऑफ दिस चाहिए ना, तो एक्सपेक्टेड ऑफ दिस के लिए भी क्या होगा, प्राइस इन पीरियड T, एक्सपेक्टेड प्राइस इन पीरियड T माइनस प्राइस इन पीरियड T माइनस 1 अपॉन प्राइस इन पीरियड T माइनस 1। तो मैंने सेम चीज़ करी, मैंने पहले PT उससे डिवाइड किया PT माइनस 1 से, और फिर उसके बाद मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो ये यहाँ तक तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी आ गया था, ये तो ऑलरेडी यहाँ तक आ ही गया था। अब ये तो जब आ ही गया तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 1 प्लस पाई ई बच गया। तो कैन आई राइट दिस एज 1 प्लस पाई टी, 1 प्लस पाई टी प्लस 1 एक्सपेक्टेड ऑफ पाई टी, और प्लस 1 प्लस एम प्लस ये फंक्शनल फॉर्म। इज दिस पॉइंट यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? बाद में आपको मैं पूरी लिखने के लिए बोलूँगा एक के बाद एक।
आई विल गिव यू 5 minutes टू राइट ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो, उसके बाद मैं लिखना दूंगा. कैन नो वन विल आस्क यू टू डिराइव दिस. नो संस्कृति, इट्स नॉट अबाउट कि कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, बट स्टिल यू शुड नो कि आया कहाँ से. मैं ये नहीं चाहता कि आज कल जाके तुम बोलो कि ये हवा में इक्वेशन कहाँ से आ गई. कि देखो, अंडरस्टैंडिंग इज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो करा रहा हूँ तो ठीक से करा रहा हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँच गए हम. अब वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय, हमने क्या करा, बोथ साइड्स को हमें सिर्फ राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये चाहिए था, सिर्फ ये चाहिए. ठीक है, तो मैंने दोनों साइड को इससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर तो यही बच गया, यहाँ पर ये बच गया. अब इशू इज, अगर हमारी now as long as this is important, as long as inflation, expected inflation and markup are not too large, तो this is you can think of this as कि यार अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है तो can I write this as 1 plus, क्योंकि देखो ना, अगर ये लार्ज नहीं है तो इसका डिवीजन और वो करके भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. पाई टी माइनस 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, माइनस m. अगर मैं जैसे लॉग फॉर्म में लेता और लॉग फॉर्म में इसको बाहर निकालता तो ऐसे ही होता. याद है, समझ में आ रहा है कि लॉग फॉर्म में भी ऐसे ही हो रहा होता, कि मैं नीचे से उसको माइनस कर रहा होता अगर लॉग में हो रहा होता. तो समझ में आया कि नहीं आया? यस नो यस नो यस नो यस नो. नहीं आया? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक्सप्रेशन ऐसा है, ठीक है, अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है, तो अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे लॉग लगाऊंगा तो लॉग का डिवाइड का अगर उसको सॉल्व करते हैं तो अगर आपको पता हो कि वो माइनस में आ जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वाली प्लस में आ जाती है, ये पता है? यस और नो? ठीक है, तो इफ दैट इज द केस, तो इसका अगर अप्रॉक्सीमेशन लेना है, तो अगर इसका लॉग अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो लॉग अप्रॉक्सीमेशन, दीज आर रेट्स ना. जब आप रेट्स के बारे में बात करते हो तो डोंट यू थिंक आप लॉग्स के बारे में बात करते हो? आपने लॉग कब पढ़ा होगा? जब आपने रेट चेंज और रेट्स के बारे में बात करा होगा. यस, और टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन भी बाय द वे ऐसे ही कुछ आता है, मैं आपको मनी में पढ़ाऊंगा. तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आई कैन सिंपली से दिस एज, आई कैन सिंपली राइट दिस एज कि एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस विल बी 1 प्लस पाई टी माइनस दिस, क्योंकि डिनोमिनेटर में, प्लस एम, क्योंकि सॉरी माइनस एम, क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर में बट मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इसको प्लस कर सकते थे. तो दिस इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज एन अप्रॉक्सीमेशन. अगर मैं लॉग अप्रॉक्सीमेशन भी करूं एंड गिवन कि ये वैल्यूज जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी छोटी वैल्यूज हो, तो दिस कैन अप्रॉक्सीमेट दिस, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस. किसी ने टेलर अप्रॉक्सीमेशन सुना है? इसीलिए थोड़ा मैथ्स में दिक्कत होता है. टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन सुना है? यस नो मैथ्स गाइस, मैथ्स, एमएमई. ठीक है, देखना एक बार. ठीक है, इसका एक अप्रॉक्सीमेशन हम ऐसे कर सकते हैं. फॉर नाउ अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं. सो वी डोंट वांट टू गेट स्टक देयर. नाउ वी गॉट 1 प्लस पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 प्लस माइनस एम इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा यू टी प्लस जी. तो ये 1 तो 1, ये 1 और 1 यहाँ से कट गया, तो मैं इधर पाई टी रख लूँगा, इस पाई टी को मैं दूसरी तरफ ले गया, ये m प्लस जी आ गया, दोनों कांस्टेंट टर्म्स आ गए, और माइनस अल्फा यू टी आ गया. इज दिस रिलेशन क्लियर? ये कहना है, डू आई हैव दिस नाउ? ठीक है, और इससे अगर मैं टी सब्सक्रिप्ट गायब कर दूं तो इट बिकम्स पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस एम प्लस जी माइनस अल्फा यू टी. यस और नो? यही वाली इक्वेशन हमने वापस निकाल दी. प्लीज राइट डाउन दीज इक्वेशंस वन बाय वन.
डू नॉट लीव इट फॉर लेटर, इसको एक बार लिख लो, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी हैव डन स्टफ. ठीक है, टेक 2-3 minutes, राइट डाउन दिस मेथड कि हमने क्या किया है, एंड गेट कन्विंस्ड एंड देन वी गो फॉरवर्ड. ओके, सो वी हैव रीच दिस पॉइंट कि हम इस फंक्शन से यहाँ तक पहुँच गए. नाउ what this function is telling you, now this is telling you a relationship between inflation rate and unemployment. Isn't this inflation rate जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था वो क्या कह रहा था, उसने यही तो प्लॉट किया था कि यार इन्फ्लेशन रेट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, एंड दिस इज व्हाट द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व इज. और वो बाकी सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहा है. ही इज एक्सप्लेनिंग an increase in expected inflation leads to an increase in actual inflation. Now why? अगर आपका देखो, अगर खुद सोच के देखो कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइसेस इंक्रीज होंगे तभी तो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है पी टी माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, यही है ना. हमेशा पूरा सॉल्व करके देखो कि ये कब बढ़ेगा. ये तब बढ़ेगा जब ये चीज़ बढ़ेगी. जब ये चीज़ बढ़ेगी देन वी नो कि इसकी वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इसकी वजह से वेजेस बढ़ जाते हैं, वेजेस बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं. इज दिस ऑर्डर क्लियर? यस और नो? और अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो दैट मीन्स पी टी बढ़ गया तो पी टी माइनस 1 अपॉन पी टी माइनस 1 ये बढ़ जाएगा. अगर ये बढ़ गया तो मेरा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा. So can I say unequivocally that increase in this is going to increase in inflation? Increase in expected inflation leads to an actual increase in inflation rate. Yes or no? पक्का बोलो सारे. ठीक है, complicated है stuff, but this is being आपको uncomplicated करके बता रहा हूँ. ठीक है, an increase in expected prices leads to 1-to-1 increase in actual prices. If wage setter expect higher prices, they set higher nominal wage, which leads to an increase in prices. Now all of this is there. So then given expected increase in inflation and increase in markup or an increase in wage determination or कोई भी wage या increase in Z leads to an increase in inflation. अब ये कैसे है, अगर आप सोच के देखो कि आपका क्या था, आपका वेजेस वाज PE FUZ और आपने इसी का फंक्शनल फॉर्म जो लिखा था 1 माइनस दिस प्लस Z लिखा था. तो अगर मैं इसी को let it stabilize. If I increase this, then what will happen? Increasing this is going to increase this. If this increases, then I know my PT is going to increase. If PT is going to increase, I know pi t is going to increase. Yes or no? और सेम चीज़ M के साथ में है कि M के साथ में भी यही चीज़ है, क्योंकि we know price is equal to 1 plus MW. अगर M इंक्रीज होगा तो we know PT will also increase. Yes or no? तो M इंक्रीज करना या Z इंक्रीज करना leads to an inflation. Come on guys, yes or no? I need yes or no from your side. Third thing, ठीक है, given in expected inflation, an increase in unemployment rate decreases the inflation rate. ठीक है, now an increase in unemployment rate, देखो अगर unemployment rate बढ़ेगा तो that means आपकी wage setting relationship में क्या होगा, wages कम होंगी, wages कम होंगी तो उसकी वजह से prices कम होंगे, prices कम होंगे तो आपका inflation का rate जो हो जाएगा वो आपका गिर जाएगा. So there is a negative relationship between you and this. So if you see this, given the expected an increase in unemployment rates leads to lower nominal wage leads to lower prices is basically given in terms of decrease in inflation rate. So this is what we get. Yes or no?
इसको अगर मैं टी के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो टी के टर्म्स में मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? So in the early incarnation, now we are going to study about I'm going to teach you early Phillips curve today. I'm not going to teach you modified Phillips curve, ठीक है, क्योंकि मैं Phillips curve को फिर से रिवाइज करवाऊंगा कल की क्लास के लिए। तो आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू द अर्ली Phillips curve। टाइम देखते हैं, अगर इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू टेक अप मॉडिफाइड Phillips curve, मे बी आई कैन क्विकली गो थ्रू दैट एज वेल। नाउ अब इन्होंने क्या किया दैट जब हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो था, जब अर्ली इनकारनेशन हो रहा था, तो ये क्या कहते हैं, जो एवरेज इन्फ्लेशन था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिलिप्स, सैमुअलसन एंड सोलो, जब हम इस पीरियड के बारे में बात कर रहे थे तो कंट्रीज़ के अंदर, ये एडवांस कंट्रीज़ थी, इनके अंदर इन्फ्लेशन कम था। तो इन जनरल अगर आप देखो एडवांस कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन बहुत कम होता है, 1% 2% रहता है। जापान के अंदर तो कम हो जाता है, 0 हो जाता है। सो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, जब इन्फ्लेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? जब इन्फ्लेशन ही नहीं है तो आप वेज सेटर्स भी पुरानी वाली वेजेस रखेंगे। सो इफ़ यू नो दैट प्राइस का एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो चेंजेस नहीं होंगे, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, जो पिछले पीरियड का प्राइस है वो इसी पीरियड का प्राइस रहेगा, तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो एक्सपेक्टेड, तो इन्फ्लेशन का क्या है? इन्फ्लेशन ये क्या है? दिस इन्फ्लेशन, दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू PT एक्सपेक्टेड माइनस PT माइनस 1 अपॉन PT माइनस 1, ये होता है। बट अगर मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ PT इज इक्वल टू जो प्रीवियस पीरियड का ही PT है, तो उसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेशन इन T विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? जो पुराने प्राइसेस हैं वही प्राइसेस हो रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट चेंज ही नहीं हो रहा है। यस और नो गाइस? सो इन द अर्ली इनकारनेशन जो हमारा हमने बात करी थी कि पाई टी विल बी इक्वल टू पाई टी ई प्लस 1 प्लस जी माइनस अल्फा यू टी, तो ये वाला जो चीज़ थी इसको आपने 0 लेके चल लिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप कि इन्फ्लेशन जो है वो सेम प्राइसेस जो हैं वही रहेंगे एंड दे एक्सपेक्ट द इन्फ्लेशन टू बी इक्वल टू 0 ओवर द नेक्स्ट 1 year as well because the prices will remain the same, and this is the outcome that you have, and this is why this was called as Phillips curve, a relationship between inflation and unemployment. Or this is all of this also tells you something called as wage price spiral कि अगर आपकी wages बढ़ेंगी तो prices बढ़ेगा, unemployment होगा, ये all that story is there. So for example, given the expected price level, the worker simply takes the last year's price level, lower unemployment rate to higher nominal wages, higher nominal wages, अगर unemployment low हो जाएगा तो आपकी क्या कहते हैं wages high हो जाएंगी, wages high हो जाएंगी that means employment high है, employment high है that means wages high हैं, wages high हैं तो आपके price level high हैं, and this mechanism will lead to a wage price spiral. ठीक है? So you can understand this. Low unemployment, higher nominal wage, prices increase, price increase, response to next level price increase, वो next level nominal wage increase मांगेंगे, फिर आपके wage increase हो जाएंगे, फिर वो next level वो होगा. So this will keep on racing and there will be a race between prices and wages, which is called as wage price spiral, and this is something which the RBI tries to stop कि वेज प्राइस स्पायरल ना हो. अगर इकोनॉमी के अंदर वेज स्पायरल हो गया तो एकदम से इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज देयर. देन अब ये रिलेशनशिप जो है वो टूटना शुरू होता है. सो इफ यू सी वेयर इज इट कहाँ लिखा है मैंने, ये देखो. अब इफ़ यू सी 1970 से 2010 तक का डेटा, तो कैन यू सी अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो कैन यू सी कि ये लाइन तो ऐसे ड्रॉ हो रही है. अगर मैं बिफोर 1948 से 69 का डेटा दिखा रहा हूँ तो मेरी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, और अगर मैं बाद का डेटा देख रहा हूँ तो बाद का डेटा ऐसा दिख रहा है, बेस्ट फिट लाइन. तो कैन आई से कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया. कैन आई से कि ये तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है. दिस इज़ व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट. ठीक है?
सो इन 1970s, सो दिस इज व्हाट प्रिसाइसली दिस इज, म्यूटेशंस कहाँ से आता है, इन 1970s दिस रिलेशनशिप ब्रोक डाउन एज इट इज़ विजिबल इन जो फिगर 8.3 है वो पूरा गिर जाता है. And there are other reasons because of this कि the US was hit in 1970s twice because of increase in oil prices. Then increase, उसके ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी नॉन लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, नॉन लेबर कॉस्ट जो आपके इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ गई, और उसकी वजह से आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वेजेस. सो एंड उसकी वजह से आपका मार्कअप बढ़ जाएगा. सो देर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशन, देर वॉज इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एम हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन एम की वजह से आपका ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है. सो दिस हैपन and then comes the fact of this. So this is something I'm probably going to leave this for tomorrow, जो inflation expectation है, क्योंकि this is where I need to tell you, I'll just overall I'll brief you what we are going to do now. Or do you can you basically deal with this? यहाँ तक कर सकते हो या is it too much? बताओ. आई वॉन्ट टू डील विद नायरू तक, और दी मैथ्स हैज़ बिकम ओवरवेलमिंग. ठीक है, चलो कर लेते हैं फिर. यस, किस चीज़ को यस, देखो एटलीस्ट चलो मैं मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व तो आपको बता दूं क्या होगा. देखो नाउ लेट्स सपोज कि हमने कहा हमने इससे पहले बोला कि हमने इसको तो ले लिया था 0. ठीक है, बट सपोज ऐसा नहीं होता. सपोज व्हाट हैपन्स इज दैट योर एक्सपेक्टेशंस दैट यू आर सेटिंग अप इज बेसिकली सम फंक्शन, सम थीटा फंक्शन ऑफ पिछले टाइम में जो आपका इन्फ्लेशन था वो क्या था. ठीक है. सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट दिस थीटा बेसिकली कैप्चर्स कि लास्ट पीरियड का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अभी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी इन्फ्लेशन पे क्या होंगी, आप वो देखना चाह रहे हो. सो अब जब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर परसिस्टेंट है ही नहीं तो लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन क्या है, तो उस केस में आप थीटा को 0 लेके चल रहे हो. So as long as inflation is low and not very persistent, it is reasonable for workers and firms to ignore the past inflation. उनको चाहिए नहीं कि past में क्या inflation था. They assume price level will always be remain the same and price level will always remain the same. तो उनकी थीटा की वैल्यू 0 हो गई. But if inflation became more persistent, कि inflation हर साल 5% से बढ़ जाता है, तो यू नो कि इन्फ्लेशन जो है अब आपको 5% से बढ़ रहा है, तो इस साल भी 5% से बढ़ रहा है. सो what can happen if they start assuming if inflation had been high last year, inflation is likely to be high this year as well, then this theta parameter is expected inflation has increased. तो उस केस में आप थीटा को इक्वल टू 1 ले सकते हो. सो उस केस में आपने क्या कहा, आपने कहा कि इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू, इन्फ्लेशन इन पीरियड टी विल बी इक्वल टू थीटा t-1, और थीटा की कोई वैल्यू ले सकते हो, एंड m प्लस टी, और ये तो पुराना ही है. जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था उसके अंदर आपने थीटा की वैल्यू 0 डाल दी, और अब जो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व है उसके अंदर अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है वो इस ईयर का इन्फ्लेशन है. कैन आई से दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अडेप्टिवनेस, कि जो पिछले पीरियड में इन्फ्लेशन रेट होगा वो ही इसी पीरियड में इन्फ्लेशन रेट होगा. कैन आई इन सम वे कॉल दिस एज अडेप्टिवनेस. यार पास्ट का डेटा को ही आप आगे लेके चल रहे हो कि यार पिछले पीरियड में क्या इन्फ्लेशन थी, इस पीरियड में वही इन्फ्लेशन होगी. तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम सेइंग इन्फ्लेशन प्राइस इन 2025 एक्सपेक्टेड माइनस 24 का प्राइस अपॉन 24 का प्राइस क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 24 माइनस 23 अपॉन 23 प्राइस इन 23. कैन आई से दिस समथिंग लाइक दिस, कि जो पिछले पीरियड में चेंज आया, अगर पिछले पीरियड में 10% से चेंज आया था, इस पीरियड में भी 10% से चेंज आएगा. यू आर पेइंग 100% अटेंशन. कैन आई ऑल्सो से दैट यू आर पेइंग 100% अटेंशन टू वन लैग, वन पीरियड लैग. यस और नो. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको सारी की सारी चीज़ें आपको आने वाली है रैशनल एक्सपेक्टेशंस के अंदर, इसीलिए ये मॉडल के बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन एकदम बिल्ट होता है. कैन आई से
मैं इससे पहले वाले पीरियड में जो हो रहा है मैं अंधाधुन काम कर रहा हूँ, यार लास्ट पीरियड में क्या हुआ वो कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप बस कुछ नहीं देख रहे, आप पिछले वाले पीरियड को कॉपी कर रहे हो और आज को कॉपी करके उसको कॉपी करके ये हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी अगली बार कितनी सीटें जीतेगा, जितनी पिछली बार सीटें जीतेगा उतनी इस बार सीटें जीत रही है, ठीक है। सो उस तरीके से यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इफ यू टेक थीटा इज इक्वल टू 1, the relationship becomes moving last year's inflation to इस side पे. So this becomes this when theta is equal to 1, and unemployment rate affects not inflation rate but the change in inflation rate. Now this is the change in inflation rate. Higher unemployment rate leads to decreasing inflation. Low unemployment rate leads to increasing inflation, not a rate, increasing inflation. Is this idea clear or not? And this is how we have also written this, and this is called as modified Phillips curve, expectation augmented Phillips curve या accelerationist Phillips curve. इसको तीनों नामों से बोला जाता है. टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, इसका डायग्राम बनवाऊंगा आपको, और फिर व्हाट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस. एंड फिलिप्स कर्व एंड नेचुरल रेट के बीच में रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे. एंड मिल्टन फ्रीडमैन, जो मैं आपको बताता, फ्रीडमैन की थ्योरी जो आपको करनी है वो फ्रीडमैन की थ्योरी आएगी. एंड नायरू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है. इनफैक्ट नायरू इज़ अ वेरी स्पेशल रेलेवेंस इन माई लाइफ. मेरा एक ये क्वेश्चन ठीक होने की वजह से मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंच गया था. उस टाइम पे एंट्रेंसेस होते थे, एंड आई बाय चांस आई हैड रेड दिस समवेयर. So this term has a very special reference in my life. And then we will talk about neutrality of money again, and then we will summarize this. But we will summarize this with the new classical thing, which is Lucas critique. ये Lucas critique के साथ हम summarize करेंगे. And I will make you run through, not walk through, run through the monetarist wala chapter in Freud. And from my side then it is over. If you want me to do ISLM and ADAS again from some other source, so we can do that on Wednesday. Otherwise I am done. I will see the questions, jitne questions hain, and we are done with my part. Is the idea clear? समझ में आया? आज की क्लास थोड़ी हैवी थी in terms of maths, in terms of interpretation. Please go through it, read it, and then we will discuss it again tomorrow. Tomorrow we will meet at 3 or 3:15, and we will continue till 5:15. Yeah, 1.5 or 2 hours की जैसे भी हमारी क्लास होगी. All right. So I will see you tomorrow, guys. Thank you very much. See you in D3 tomorrow morning. Bye bye.